Are we as voters ready to say we don't want freebies? We are clearly not. As you see, Anand, if you look at my own state, Bengal, it's in नहीं 5.8 लाख करोड़ हो गया है. अच्छा 5.8 हो गया. 5.8 लाख करोड़ डेट. 6 लाख हो गया. हाँ 6 लाख करोड़ का डेट है. ममता बनर्जी has just now announced कि पूजा कमिटीज को 50,000 करके मिलता था दुर्गा पूजा के समय, अभी वो 60,000 मिलेगा. अब उस पैसे से क्या होता है? You know, ask me first, and I mean, it used to be great fun though, because ये नवमी अष्टमी नवमी से दारू पीना स्टार्ट for all the people who are this thing, committee members. Office bearer. It is basically booze allowance disguised as puja committee, whatever. Meat and liquor. Nonsense. How can you, and people for that, and 500 rupees a person, for that people are, voting for her. Now, one, that we are so short-sighted that we do not understand. Second is, where we come in, as in the fourth pillar of democracy, which is the media. Media talks about things in such a shallow manner, it doesn't tell the voter कि आपको free दे रहा है तो इस कितना deep गड्ढा खोद रहा है और कैसे it will come back to you one day. We do not, when we are doing the reportage of such news, we do not explain to people. It is our prime, it is our responsibility to do that. And इसका एक तो हल है कि Parliament has to make it very clear, as he said, Amar ji, कि we need very clear guidelines. If the state defines something legally as welfare, then it is welfare, else it is a freebie. How difficult is it for the Supreme Court to come out and pass a judgment which says this is what you have to do? No, I am not agree with my brother. स्टेट तो कुछ भी कह देगा, ठीक है, कह देगा एक काम करो मुझे वोट दे दो, मैं आपको हांगकांग घुमा दूंगा, आपको मैं बैंकॉक घुमा दूंगा. स्टेट का मतलब क्या? पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट इज द स्टेट? No, the government has to legally define it. That's what you're saying. Ultimately, what is the government? Government is the political party. Political party decide who will become the home minister, who will become the prime minister, who will become the governor, who will the chief minister. So ultimately, government करती क्या है? Government वो काम करती है जो उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है. आप जरा समझिए. Actual में political parties should be more responsible because in fact they are the public authority. यही मेरी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है. Yeah, but एक बात बताइए. So the political parties today are asking who's the Supreme Court to decide what we should write in our manifesto. नहीं, वो तो बहुत उसको फटकार भी लगी. जैसे एक डीएमके के नेता ने बोला, उसको बहुत फटकार. फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर तमिलनाडु के, उसको बहुत इसलिए फटकार लगाई. बड़ी सीधी सी बात है. आपके पास क्या है? आप क्या कर सकते हो? आपके पास अगर 20 काम है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले वो काम करो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसा स्कूल बनाओ जहां गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ सके, मंत्री और संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ सके. हमने ऐसा स्कूल बनाया. कितने मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? कितने विधायकों के जा रहे हैं? दिल्ली का स्कूल जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास का स्कूल है, पता नहीं विदेशों के अखबारों में इसका ऐड भी चल रहा है स्कूल में. सुप्रीम कोर्ट में यही बात हो रही है. अच्छा, आप जरा सरप्राइज की बात, भारत में 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं. 2 पॉलिटिकल पार्टियां मेरी पीआईएल का विरोध करने आई हैं. एक डीएमके, एक आम आदमी पार्टी. 2000 पॉलिटिकल पार्टियों में केवल 2 पार्टी आई विरोध करने, क्योंकि एक उधर मंगलसूत्र बांटती है या मिक्सर जूसर ग्राइंडर बांटती है, दूसरा कुछ अलग बांटती है. A constitution bounds us as to what can be defined, and then the governments take a decision consciously based on the constitution what should be classified as a public good and a non-public good. Firstly. Secondly, एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए कि वो आराम से रह सके, मोबाइल पकड़ा देती है, उसको टॉफी पकड़ा देती है, चॉकलेट पकड़ा देती है, टीवी दिखाना शुरू कर देती है. अब ये फ्री भी है या वेलफेयर है? क्योंकि उसका तो अल्टीमेट वेलफेयर हो रहा है ना. अगर वेलफेयर नहीं होगा तो बच्चे को कैसे देखेगी वो, या उसका फादर कैसे देखेगा, या वो पार्टी में गई है तो फ्रेंड्स को कैसे अटेंड करेगी? तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज है जिसको हम कहें कि ये फ्री भी है या वेलफेयर है. वो कहेंगे कि देखिए लॉन्ग टर्म में जाके आपने इस मंगलसूत्र दिया, शादी की, मैंने इतनी सारी लड़कियों की जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी करा दी, अब इनकी फैमिली बनेगी. फ्री भी नहीं है, ये तो वेलफेयर है. So you see, everything can be defined. You can twist the argument however you want. You can always twist the argument. That's what legal people have done it for ages, even before India became India and when it was Hindustan. So it is not something new. As I said,
constitution outline public good, and that what defines a welfare or a PB. The cost is always going to be borne by you and me. Yeah. Whether it is Angrez ki sarkar who used to collect hafta while traveling, Collector. or whether it is the central government or the state government. So they will always collect the money from us. Now, a lot of people debate on this alcohol thing. दे रहे हैं, पैसा लेके खरीद रहा है ना इंसान, चाहे वो उसको एक फ्री भी मिल रही है, पैसा ही देके ले रहा है ना, फ्री तो नहीं दे रहा सरकार कहीं पे भी कि अल्कोहल फ्री ले लो अपना जाके, कहीं पे फ्री नहीं दे रहा, कहीं किसी सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो किसी और स्टेट की हो, या ऑफर भले ही चल रहा हो, लेकिन एक पहली बॉटल के लिए तो आपको पैसे देना ही पड़ेगा ना आपको पैसा, तो फ्री कहां से हो गया? वेयर इज इट अ फ्री बी? लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट. So it is not right, but it is not freebie. So we should be very clear about what defines freebie and not. Secondly, we should be very clear, all costs have to be paid by people like you and me. A taxpayer's money goes in it. Thirdly, how do these people finance? आपने बड़ा अच्छा बात किया, लैपटॉप दे दो. बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, यूपी में भी हुआ, सब जगह बांट दो, ये बेच दो, वो बांट दो. क्या अमन अग्रवाल देना शुरू करेंगे तो अभिजीत मजूमदार को देना पड़ेगा, फिर आनंद नरसिम्हन को देना पड़ेगा, और अश्विनी उपाध्याय को भी देना पड़ेगा. तो छुआछूत की बीमारी है. देखिए, एलोकेशन होते हैं बजट में से, फिर कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है कि आप इतना इतना पैसा दीजिए ताकि हम ये लोगों को सुधार के लिए बांट सकें. इन एवरी स्टेट इन दिस कंट्री, जो हम पहले सुनते थे सिर्फ असम में, वो वहां पे गुंडे आगे कि इतना पैसा हमें हफ्ते का दीजिए, एक्सटॉर्शन. वो एक्सटॉर्शन गवर्नमेंट्स एज ऑफ टुडे, स्टेट, सेंटर, ऑल आर डूइंग इट ऑन अ लीगल बेसिस. दे विल सेंड यू, ये करिए, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट ये स्ट्रिक्चर्स निकाल रहे हैं. तो आप क्या करते हैं? फिर आप देते हैं, फिर वो उसको वेलफेयर की तरह बांटते हैं लोगों के बीच में, कुछ एलोकेशन करते हैं, कुछ एलोकेशन नहीं करते हैं. तो इसलिए ये बहुत बड़ा क्रिटिकल डिबेट है, बट अल्टीमेटली इट इज पीपल लाइक यू एंड मी who have to take a conscious decision, as you rightly said, take a conscious decision of whether we want a state which will give us and land up into Sri Lanka, or we want a state which can go up. Thank you very much. Big round of applause for our guests, and thank you for joining us here on this edition.